असलकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सर मोहम्मद अली। और आज का बेसिकली हमारा टॉपिक जो है केमिस्ट्री क्लास 9 है, क्लास 1 यानी कि लेक्चर 1 ले रहा है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे केमिस्ट्री की। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? तो कहते हैं बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal the composition, number one. Second one is its the properties. Number third is structure and the reaction or loss. ठीक है। तो what do you mean by chemistry? Chemistry is the branch of science in which we deal the composition, the property and the structure of the matter and the reaction or laws which change. This is known as chemistry. For example, if we suppose we take as an example of water, H2O. You know that the what do you mean by the composition? Water is composed of two elements, that is hydrogen and O is oxygen. It's mean two part of hydrogen and one part of oxygen. It is known as water and it is the composition of matter. And what is matter? Anything which occupies space in this universe is called matter. So water is also a matter, so we consider it also a matter. Okay. नंबर 2, इट्स मेनली जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो वाटर बेसिकली इट इज़ अ लिक्विड and it is also a universal solvent. You can use as a solvent as well, and you can make anything with water, either making electricity, either making food for eating, either कहते हैं either take water for कहते हैं ड्रिंकिंग कहते हैं पर्पज. सो यू कैन यूज एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सही है. व्हाट आर यूजेस ऑफ वाटर? फॉर कहते हैं ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर making food, industrial purpose, for home uses, washing, etc. So there are so many purposes of water, including all of them also and more of them. This is why I called water as a universal solvent. Is that clear? Okay, now we are transferring into the structure of water. What is the meaning of a structure? भाई कैसी उसकी शेप होगी? तो यू नो डेट लाइक शेप जो है वो बेसिकली दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज सम टाइम शेप ऑफ द वाटर. अब आप चाहें तो कोई और एग्जांपल ले लें. लेट सपोज वी कैन take the example of methane. This is called methane. The purpose of methane is also a sweet gas जो आपके चूल्हे में आ रही है, स्टोव में आ रही है, वो आपके बेसिकली मीथेन गैस है. तो स्ट्रक्चर जो होगा इसका बेसिकली ये है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर इस टाइप के हमारे. और क्या है लास्ट वन, व्हाट इज़ द रिएक्शन? कि भाई क्या रिएक्शन हो रहा है, हम इससे क्या मिलके बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, कि भाई वाटर से हम
क्या लेते हैं, लेट सपोज वी टेक C as a coal. This is coal which is कहते हैं which is present in solid form, and L is the liquid. They make water gas H2. This is called water gas. ठीक है. Suppose uh, another example, if we take, let's suppose example of methane also. If we decompose it at 700 degrees centigrade, they form coal and hydrogen gas. Okay, so we have different the kind of reaction and laws which govern this chain. So basically we review the branch of we review the topic of chemistry. Okay, what do we mean by chemistry? Chemistry is the branch of science which deal with the composition, property, structure of matter, and the reaction which involve this change is known as chemistry. As, as I mentioned above that composition, let's suppose we take an example of water. If we take an example of कहते हैं मीथेन is composed of one atom of carbon and four atom of hydrogen. Okay, and in this case we take an example of water is a liquid. So and it is also a universal solvent we use for drinking purpose, for making food, for industrial purpose, for home uses, for washing, for detergent process, anything. um, Without water we cannot live in this world, because a human consists of almost 75 to 80% water in his body as well. So, and last one number the third one is structure. Let an example of CH4. I also propose an example of water as a hydrogen bonding purpose, and methane is C of H. Then I also provide the equation of the reaction where we are if we take an example of C plus H2O, where where water gas is formed, and the second one example from methane is CH4 C plus 2H2. Okay, so this is our to our example in which I describe the uh, the main main heading of the chemistry. Okay, so now we are moved to branch of chemistry in which we discuss the further. Hope this video is very essential for you as well. Okay, now we are now we are transferring to the basically number one is physical chemistry. One is physical chemistry. Physical chemistry is the branch of science in which we discuss the laws and principle of atoms and molecules. What do we mean by atoms? First of all, we can see that what is atom. Atom is a single unit. Let's suppose if we take an example of hydrogen. Hydrogen is atom. Hydrogen atom, which is made of H. Oxygen. Hydrogen is form as H2 form. Oxygen atom. O. Sodium, potassium extract, and molecule which are made up of two compound. Let's suppose if we make hydrogen and oxygen, then it is made of H2O. Second example, carbon plus oxygen, we can make carbon dioxide.
Na sodium plus chlorine, it is made of NaCl extractor. ठीक. So basically physical chemistry is the branch of chemistry in which we discuss the laws and principle of atoms and molecule and change also. Okay, is that clear? We are now moved into organic chemistry. Inorganic chemistry, first of all. Inorganic chemistry and organic chemistry. What are main difference between this? Inorganic mean extract the compound of कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया नहीं जाता. लेट सपोज हमारे पास NaCl है, तो हम कहेंगे कि भाई ये ठीक है. ठीक है. हमारे पास KCl है, तो हम कहेंगे ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर टू the carbon compound. Let's suppose example C6H12O6. This is formula of glucose. आप रोज़ाना इनटेक करते हैं ग्लूकोज. शुगर C12H22O11. यू मतलब आप हर रोज़ इनटेक करते हैं शुगर इन द फॉर्म ऑफ मतलब इफ़ यू टेक सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें भी शुगर क्या तो प्रेजेंट है. इफ़ यू टेक टी देन यू ऑल्सो टेक शुगर, एंड इफ़ यू टेक एनी जूस sugar is compulsory, and if you take rice, wheat, anything, sugar always present in any food. Okay, so basically we discuss the topic of physical chemistry. Inorganic chemistry. Inorganic chemistry, it is the branch of chemistry in which we discuss element generally obtained from non-living thing and except compound of carbon, hydrogen and oxygen. And organic chemistry, the branch of chemistry in which we deal the compound of carbon, कि जिसमें कार्बन मौजूद हो, लाइक हाइड्रोकार्बन, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं. बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट अगर किसी एलिमेंट में हो रहा तो वो रेफर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Okay, so we are moved to another branch which is known as analytical chemistry and so on. So this is simple the class in which all the student of class 9 of any standard can review this lecture, and inshallah you will get good marks while learning purpose. Analytical chemistry. So it is derived from analyte और एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब है कि जिस पे कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन विच वर्क इज डन. एक्सट्रैक्टर, कोई आप काम करें, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं. तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस, वी डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स. डिफरेंट हम इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं. I am also an analytical student, and where I work at a different instrument like HPLC, as you know, the high performance liquid chromatography, UV spectrophotometer, FTIR,
Fourier transfer infrared radiation, GC, gas chromatography, atomic absorption, uh, okay, and mass spectroscopy, and so on, specific rotation, etc., specific rotation, dissolution apparatus, so on, related to pharma industry. If you are working with pharmaceutical industries, or working in an industry, so you already know about all the instrument. And in fact, if you are studying in a university, so you use HPLC. For example, if you are studying in a Karachi University, all the department have have HPLC, UV spectrophotometer, might be specific rotation, might be resolution apparatus, or something like that. Okay, so the branch of analytical chemistry in which we deal with we use different instrument for the study of know the compound structure, or either unknown substance, because in HPLC you have to find the unknown compound. You can separate the the compound, मतलब HPLC में बेसिकली आप ये करते हैं कि डिफरेंट एफिनिटी, यानी कि डिफरेंट आप जो बेसिकली जो जितना ज़्यादा पोलर होता है वो जल्दी इल्यूट हो जाता है, और नॉन पोलर रह जाता है। उसका भी टॉपिक मैं आपको फ्यूचर में डिस्कस करूँगा। क्या था TLC है, क्या नाम है, थिन लेयर क्या था क्रोमेटोग्राफी, या PC है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आप ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, बट ये है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश की है। वी आर नाउ मूव इनटू द बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस। बायोकेम के बारे में भी आपने काफ़ी चीज़ पढ़ी होगी। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली केमिकल जो है वो बायो, देखिए व्हाट डू मीन बायो, बायो मीन लाइफ, एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी आई वाज डिस्कस कि भाई आपने उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, स्ट्रक्चर बताना, मैटर। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब स्टडी आपने बता दी है जो भी ऑर्गेनिज्म है आपका, इनफैक्ट इंसेक्ट है, अब उनकी बतानी लाइफ, कि भाई लाइफ क्या है, कहाँ सरवाइव करते हैं, कहाँ उनकी क्या कहते हैं प्रिपरेशन है, कहाँ वो डेट है। तो ये XYZ एक्सट्रैक्टर, सही। तो बेसिकली आपने स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनानी है, विच वी आर डिस्कस द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, so now we are move into the some other कहते हैं branches which is known as industrial chemistry branches, and so on. Hope so this lecture is very essential for you, for कहते हैं making the for कहते हैं preparing your exam, or for समझने के लिए आसान, for learning purpose. So we are now move into sixth branch, which is known as industrial chemistry. Okay, lots of university also कहते हैं perform bachelor and master program in कहते हैं Karachi, like basically first of all is Karachi University. Industrial chemistry, it is also known as applied chemistry, and NED University also perform bachelor program and an MS program. Okay, industrial chemistry basically it is a branch of chemistry in which we deal with the study of different chemical, basically different कहते हैं केमिकल कहते हैं पर्पस हो रहे हैं, केमिकल पर्पस, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रैक्टर इन इंडस्ट्रीज, उसके हमने देखने के किस तरह पर्पस हो रहा है, हाउ इट वर्क। कि आपने लेट सपोज आपकी कोई भी ड्रग बन रही है, एनी ड्रग बन रही है, लेट सपोज ड्रग है कोई भी, ए क्या ड्रग है, ठीक है, या फिर लेट सपोज फॉर एग्जांपल एंड वी टेक एन
एग्जांपल ऑफ म्यूकेन सस्पेंशन, म्यूकेन सिरप, ठीक है, म्यूकेन सस्पेंशन, ठीक है। या आपने ये भी नहीं लिया, आपने एक और कहता है ड्रग ले ली एंटी टीबी की, एंटी टीबी ड्रग। तो सो बेसिकली कि भाई फ्रॉम स्टार्ट आपने करा है रॉ मटेरियल, कि आपने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, ठीक है, वेंडर्स कौन थे, यानी कि कंट्री कौन सी थी, जो भी जो भी वेंडर हैं आपके, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, जर्मन हो, यूरोप हो, जो भी आपको वो उतनी कीमत पे, जितनी कीमत पे आप चाह रहे हैं वो मिल जाती है। तो वो उसके बाद आपने अपनी टीम देखी कि टीम भी मेरे पास है, फिर आपने अपनी टीम के साथ आपने स्किल्स भी देखी कि भाई स्किल भी मेरे पास मौजूद हैं, फिर आपने अपनी मशीन देखी कि भाई मशीन उसको बनाने के लिए है या एरिया है, फिर आपने ये देखा कि भाई ठीक है अब रॉ मटेरियल आ गया, अब हम उसको फॉर्म करते हैं। तो फिर आपने अपना प्रोसेस चेक किया, ठीक है, फिर आपने अपनी क्वालिटी चेक की, और लास्ट में आपने जो है वो पैकेजिंग की कि भाई आपने पैकिंग कर दी और ये करके मार्केट में भेज दिया। तो सो बेसिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के भाई कोई भी इनफैक्ट ये नहीं बात है कोई ड्रग ही बन रही है भाई, आप कोई आप लेट सपोज यूनिलीवर की इतनी सारी कंपनीज हैं जिसमें सोप मेकिंग हो रही है, या सोप मेकिंग सर्फ एक्सेल बन रहे हैं, या साबुन बन रहे हैं, या ड्रग बन रही है, या फूड कहते पर्पस बन रही है। तो डिफरेंट केमिकल पर्पस मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, लेट सपोज मैंने दे दिया भाई कोई भी ड्रग है लाइक एंटी टीबी है, सो फर्स्ट वी थिंक कि भाई उसका रॉ मटेरियल जहाँ से भी आप मंगवाना चाहें, वेंडर जो भी आपका वो कंट्री आपने पर्पस, फिर हमने देखी टीम भी है आपके पास, ये तो नहीं कि टीम नहीं है तो फिर विदाउट टीम आप कैसे वर्क करोगे, मशीन पर्टिकुलर एरिया है, फिर प्रोसेस आप देखोगे, फिर क्वालिटी आप चेक करोगे, देन आप पैकिंग या उसको मूव कर दोगे। तो यहाँ तक काफ़ी स्टूडेंट को मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। वी आर नाउ मूव टू इनटू, अच्छा जो एग्ज़ाम में पर्पस आता है, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 ब्रांच पूछेगा, तो कोशिश करें, मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बता दिए लेकिन मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ। वी आर नाउ इनटू मूव टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा जो एग्ज़ाम में पर्पस आता है, जो मैं ये फिर एंड में बता दूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा याद हो जाए कि बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है, न्यूक्लियर मीन कि भाई मतलब इमिट ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, यानी कि ऐसी रेस जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। आपको पता है अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ठीक है, ऐसी रेस जो हमें नज़र नहीं आती वो किसी भी एलिमेंट से निकलती हैं, तो वो हमें जो है वो रेडियो एक्टिविटी भी बताती है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। बेसिकली न्यूक्लियर वो है कि जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें कोई चेंज आ रहा है, जिसमें न्यूक्लियस पे आ रहा है। लेट सपोज आपको पता ही है जो न्यूक्लियस में होता है उसमें हमारे पास 3 टाइप के चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज नो चार्ज, इसको मैं ज़ीरो कह दूँ। अब आपका जो भी एक्स वाई जो न्यूक्लियस है, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑफ सोडियम ले लें, सोडियम इज़ अ मेटल हैव, देखें यहाँ पर 11 लिखा, यहाँ 23 लिखा, द अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट फ्रॉम ए टू जेड, ए इज़ मास नंबर एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, अब आपने 11 बनाना है एटॉमिक नंबर बेसिकली। तो सोडियम इफ़ यू मेक द पहले शेल में, जाहिर बात है जो पहला शेल होता है के एल और एम शेल, तो के में हमेशा 2 आते हैं, एम में एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे।
और लास्ट में हमारे पास जो शेल है उसमें क्या होगा, 1 शेल हो जाएगा जब ये 11 मुकम्मल हो जाएंगे। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें कहूँ कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल भाई सोडियम में आप बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन। तो सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर जितना भी होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि 11। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं हमेशा, सिर्फ और सिर्फ उन चार्ज में नहीं होते जो लूज़ कर रहा हूँ या गेन कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में फ्यूचर टॉपिक बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे बताना चाहता हूँ, एक सिंपल वर्ड बताना चाहता हूँ। और लास्ट वन जो है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है कि जो मास नंबर होता है, मास नंबर को आप मास नंबर को माइनस करके एटॉमिक नंबर से करें तो जो आंसर आएगा आपका वो 12। दिस इज न्यूट्रॉन। यानी कि सोडियम मेटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है, प्रोटॉन की भी 11 है और न्यूट्रॉन की 12 है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इमिट ऑफ इंडिविजुअल रेडिएशन हो। मैंने बता दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें 3 कंपाउंड, 3 जो है वो चीज़ पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप खुद भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा और न्यूट्रॉन का ज़ीरो होगा। सही। सोडियम का मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अच्छा, सोडियम जो है बेसिकली लूज़ भी करता है, वो क्या बनाता है वो आपको पता ही है, लेकिन मैं वो क्या तो फर्दर आपको बताऊँगा। ठीक है। तो अच्छा, लास्ट जो है वो कहते बेसिकली हम जो है वो 2 हमारे पास और रह गई हैं, वो हम जो है पहले मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा और कि एग्ज़ाम में भी किस हवाले से आता है, मैट्रिक बोर्ड वगैरह में। एनवायरनमेंट, बेसिकली एनवायरनमेंट केमिस्ट्री क्या होती है, और लास्ट में हमारे पास है पॉलीमेरिक, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एनवायरनमेंट देखिए। एनवायरनमेंट का मतलब ही वर्ड से ही ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट यानी कि माहौलियाती, माहौलियाती, माहौलियाती यानी कि स्टडी, स्टडी इन विच यानी कि इंटरेक्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल मटेरियल जो कि जो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट। यानी कि बेसिकली एनवायरनमेंट केमिस्ट्री इज़ द स्टडी इन विच इंटरेक्शन ऑफ केमिकल और फिज़िकल मटेरियल जो अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सिर्फ इंसान नहीं आता है, एनवायरनमेंट मीन मैन में भी, प्लांट को भी अफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल जो जो पाया जाता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर रहे हैं। वो केमिस्ट्री एनवायरनमेंट केमिस्ट्री है। जैसे लेट सपोज इफ़ यू कहते मतलब लॉट ऑफ कहते कटिंग कहते ट्रीज हो रहे हैं आजकल के दौर में, वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, जिसकी वजह से जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेट ज़्यादा हो रही है, ओजोन लेयर की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, या जो है मतलब कहते डर्टी थिंग्स मौजूद हैं, हम फ्यूल है बर्निंग फ्यूल कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है, धुआं आ रहा है, स्मोक कहते प्रोड्यूस हो रही है, डस्ट फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से बहुत डैमेज हो रही है, ह्यूमन सिस्टम मुतासिर हो रहा है। तो ये एक्स वाई जेड ये चीज़ है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम ये जानते हैं कि एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हमारे पास एक चीज़ होती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन यानी कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। 2 चीज़ें होती हैं, एक मोनो होता है, एक पॉली होता है। मोनो का मतलब होता है एक, और पॉली का मतलब होता है बहुत, मैनी और मोर देन। ठीक है।
तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलके एक फॉर्म करते हैं। लेट सपोज प्लास्टिक बना दिया, या रबड़ बना दिया, या मतलब कोई भी ऐसी एक्सट्रैक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ बना दी, बैकलाइट है, ये बना दिया। तो पॉलीमर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट हम थिंग बनाते हैं ड्यू टू कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक, लाइक कहते हैं पेपर्स बना दिया एक्सट्रैक्ट वगैरह। ठीक है। सो कहते हैं दिस इज द मेन टॉपिक in which I discuss the main, first of all, main branch of chemistry. What is chemistry? Why we study chemistry? Due to four purpose. कहते हैं भाई हमें जो है कहते हैं properties of matter, structure of the matter, composition of matter, and the reaction which all involved, and the branch of chemistry as well. So अब लोग कहते हैं स्टूडेंट का सवाल होता है कि भाई क्या नाम है, वाई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बना सकता हूँ आपको, जो बोर्ड में आते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है, और 6 ब्रांच एटलीस्ट आपने वो होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, बोर्ड में पेपर आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस हवाले से भी गाइड कर दूँ कि किस तरह पेपर आता है। केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, मैंने बता दिया ऑलरेडी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसकी ब्रांच, 6 ब्रांच भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास बोर्ड। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये मौजूद है। अगर इफ़ यू नीड एनी कहते यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री और एनीथिंग, यू मे आस्क मी without any hesitation, and you can call me on WhatsApp. And if you need a good gather tutor, then I will definitely help you in this regards. That is all the class number 1. Inshallah, hope so we will meet you again, and I hope all the student will review this my topic, and inshallah get good marks. Hope so. Allah Hafiz, Khuda Hafiz, take care.